નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું કિશન તિવારી। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ અને આજે આપણે વાત કરીએ તો જે આપણે જોયું કે જે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં 22 એપ્રિલે જે આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો અને બેસરન ખીણની મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓને નિશાના બનાવવામાં આવ્યા હતા। જે ગોળીબારીમાં 27 લોકોના મોત થયા અને ઘણા ઘાયલ પણ થયા છે। આપણે વાત કરીએ તો પુલવામા પછી અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આતંકવાદી હુમલો માનવામાં આવી રહ્યો છે, જેને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં અને દેશભરમાં રોષની લાગણી વ્યાપી ઉઠી છે અને ઠેર ઠેર હિન્દુ સંગઠનો અને લોકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આપણે વાત કરીએ તો આતંકવાદી હુમલા પછી દેશના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતે ગયા હતા અને તેઓ મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનને મળ્યા હતા અને આ પછી સરકારે એક કડક રૂખ કર્યો છે અને શાસકથી લઈને વિપક્ષ સુધી બધા એક થઈ ગયા છે અને આ હુમલાખોરો કોઈ પણ સંજોગોમાં નહીં બચવા જોઈએ તે પ્રકારની માંગ કરવામાં આવી છે। આપણે વાત કરીએ તો જે ગઈકાલે સાંજે CCSની એક બેઠક મળી હતી, ત્યારે એ બેઠકમાં પહેલગામ હુમલાના બીજા દિવસે ભારતે તેના માટે પાકિસ્તાનને જવાબદાર ઠેરવ્યું છે અને PM નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં ભારતે પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવા માટે 5 મોટા નિર્ણયો લીધા છે। એમાં 65 વર્ષ જૂની સિંધુ જળ સંધિને અટકાવી દેવામાં આવી છે અને આપણે વાત કરીએ તો સિંધુ જળ સંધિ કરાર મુલતવી રાખવાથી પાકિસ્તાનમાં પાણીનું સંકટ સર્જાશે અને આર્થિક સ્થિતિ કથળશે। બીજું કે અટારી ચેકપોસ્ટ બંધ થવાના કારણે પાકિસ્તાનીઓની અવરજવર અશક્ય બનશે। ત્રીજું, વિઝા સેવા સાથે આતંકવાદીઓનો પ્રવેશ પણ અટકશે અને હાઈ કમિશનમાંથી સંરક્ષણ સલાહકારોને દૂર કરો અને પાંચમું કે પોતાના સંરક્ષણ સલાહકારોને પણ પાછા બોલાવ્યા છે। આપણે વાત કરીએ તો આ બે નિર્ણયોની અસર વિશે આપણે જો જાણીએ તો લશ્કરી રાજદ્વારી વાતચીત સ્થગિત છે, જે પાકિસ્તાનની સંરક્ષણ સલાહકારોના ભારત પાછા ફરવાથી બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી સ્તરની વાટાઘાટો અને સંપર્કો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે। હાઈ કમિશનનો પ્રભાવ ઘટશે અને સ્ટાફની સંખ્યા 55 થી ઓછી કરીને 30 કરવામાં આવી છે। પાકિસ્તાન હાઈ કમિશનની કાર્યક્ષમતા અને ભારતમાં તેના રાજદ્વારી હાજરી મર્યાદાઓ થશે। આપણે વાત કરીએ તો પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી પાકિસ્તાની વાયુસેનાએ 22 તારીખે આખી રાત ભયના છાયામાં વિતાવી હતી અને હવે આ ખબર પર વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે જમ્મુ કાશ્મીરથી અમારા સંવાદદાता अजय जांड्याल। जी अजय, ये जो पूरी घटना हुई है, ये पूरी घटना पे अभी किस तरह से वहां पे देखा जा रहा है और क्या माहौल अभी बना हुआ है? देश भर में जो है वो तनाव है, देश भर में गुस्सा है और जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से लोगों ने अपना का इजहार किया है। लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सेना को इजाजत दी जाए और सेना पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करे और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो हमला हुआ जिसमें मासूम बच्चों को आतंकियों ने निशाना बनाया, जो बेगुनाह वहां पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे और ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को चलाते हैं। ऐसे लोगों को अगर निशाना बनाया जाएगा तो चाहे वो जम्मू कश्मीर के आम लोग हों या फिर देश के लोग, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन जो है अभी शुरू किया गया है। जिन आतंकियों ने ये हमला किया उन आतंकियों की तलाश में इस वक्त जो है पहलगाम के साथ साथ किश्तवाड़ में, पुंछ में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। वहीं देश भर में मांग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की उठ रही है। जी जी, अभी जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सरकार ने भी एक कड़क रुख कर लिया है और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि जो भी ये आतंकवादी हमले हुए हैं और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी वहां पे किस प्रकार से जो सेना द्वारा है वो क्या सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और क्या कुछ निकल के सामने आ रही है खबरें? देखिए, आपको बता दूं कि राजौरी पुंछ के इलाके में बात हो या किश्तवाड़ का इलाका हो, पहलगाम के साथ लगते तमाम जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश इलाके में शांति को कायम किया जा सके और आतंकी जो इस इलाके में छुपे हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि घने जंगल का इलाका है। ऐसे में उन आतंकियों को, छुपे आतंकियों को ढूंढ निकालना, उनको मार गिराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो सेना के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं, IG CRPF खुद मौके पर पहुँचे थे और सेना प्रमुख जो हैं वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, जो खुद जायज़ा लेंगे यहाँ पर सुरक्षा का और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जहाँ
पर सेना की तैनाती है वहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम जो इरादे हैं उसको नाकाम करने के लिए जो है वो तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं तनाव इस वक्त बना हुआ है, मगर पाकिस्तान में जो खौफ है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान अब इस गलती को करके जो है वो खुद पछताता होगा कि उसने क्या कर दिया। मगर भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत इसका बदला लेगा और जो आतंकी हैं या आतंकियों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि वहां पे आतंकवादी और सेना के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, तो मुठभेड़ में अभी क्या कुछ निकल के आ रहा है कि कितने आतंकवादी क्या पकड़े गए हैं और किस प्रकार से वहां पे अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है अलग अलग जगह पर वो जारी है। इसी मामले में जो है पहलगाम हमले के बाद जो है लगभग 1500 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। इस चीज़ की आशंका है कि इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आतंकियों को मदद दी होगी वहाँ रहने के लिए और उसके बाद वहाँ हमले को अंजाम देने के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आज 5 अलग अलग जगह पर ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें तंगमर्ग जो कि कुलगाम का इलाका है वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है साउथ कश्मीर में, जहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। इसके अलावा किश्तवाड़ में जो है वो तलाशी अभियान जारी है। पुंछ में एक तलाशी अभियान चल रहा है जहाँ पर आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, क्योंकि सूचना ये भी है कि जो आतंकी हमला करने के लिए पहलगाम गए थे उनमें 2 आतंकी जो हैं वो पुंछ में पहले सक्रिय थे और वहां से वो पैदल चलकर वहां पहुंचे और वहां पे हमले को જી, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જે આર્મી ચીફ અસીમ મુનેરી જે છે પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ તેમણે મંગળવારે સાંજે 3 સેના કમાન્ડરો સાથે એક બેઠક યોજી હતી અને કરાચી એરબેઝથી 18 ફાઇટર જેટ ભારતની સરહદ પર આવેલા એરફોર્સ સ્ટેશન પર મોકલવામાં આવ્યા હતા. આપણે વાત કરીએ તો આ સ્ટેશનો લાહોર અને રાવલપિંડીમાં છે. આ બધા 18 જેટ ચીનના બનેલા F-17 હોવાનું બહાર આવી રહ્યું છે અને આર્મી ચીફ મુનીરને પીઓકે એટલે કે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં ભારત દ્વારા હુમલાનો ડર છે. जी जी अजय जी, तो अभी वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जी, और वहाँ पे जिस प्रकार से पूरी सेना द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, तो इसमें अभी क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है और आप वहाँ पे अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि जो इस प्रकार से जो पूरी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पूरा सेना छावनी एक बन चुका है वहाँ पे, तो अभी हाल में जम्मू कश्मीर के और बाकी जो इलाके हैं बाकी इलाकों में अभी क्या कुछ देखा जा रहा है और क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है सामने? देखिए, अब इस तरह अगर कल जो परसों जो हमला हुआ था पहलगाम में उसके बाद बाकी इलाकों में ऐसी कोई घटना नहीं है, मगर सुरक्षा बलों के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। बसंतगढ़ में सुबह कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर आई थी, जिसके बाद वहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया था और मुठभेड़ जो है वो हुई थी। उसमें एक सेना के जवान उनकी शहादत हुई है, जबकि ऑपरेशन लगातार अभी भी चल रहा है। इसी तरह पुंछ में भी जो है लसाना इलाका पड़ता है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद उस इलाके में जो है ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस इलाके में छुपे हुए आतंकियों का पता लगाया जा सके। तो तमाम कोशिशें जारी हैं ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं, जिनकी संख्या 60 से 70 हो सकती है, उनको ढूंढ निकालना और उनको मार गिराना। दरअसल आतंकी जो है वो जंगल के इलाकों में बैठे रहते हैं, वहाँ छुपे रहते हैं और जब भी उन्हें सरहद पार से एक इशारा मिलता है तो तब वो यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं। तो उसी तरह की कोशिश जो है पहलगाम में भी की गई थी, जिसमें एक बड़ा नुकसान हुआ। 26 लोग जो है उनकी शहादत हुई, वो लोग जो है वो मारे गए। जी जी, तो अभी वहां पे सेना द्वारा भी ये जो पूरी कार्रवाई गई, और पाकिस्तान से क्या कुछ खबरें अभी सामने निकल के आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो खबरें निकल के आई थी कि पाकिस्तान पूरा डरा सहमा सा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये डर है कि हिंदुस्तान उन पे हमले कर सकता है, और जो उन लोगों ने पूरी अपने जो एयर फाइटर है और एयर फाइटर सब उन्होंने एक बेस पे तैयार करके रखे हुए हैं, तो क्या कुछ अभी पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है? देखिए, पाकिस्तान में लगातार जो है कहीं ना कहीं इस वक्त डर का खौफ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदेशा है कि भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तानी आज जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आज एक बड़ी अहम बैठक भी की थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उनके साथ मुलाकात हुई और वहाँ पर चर्चा हुई कि भारत ने जो प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए हैं, चाहे वो इंडस पार्टी ट्रीटी को लेकर हो, चाहे वो बाघा बॉर्डर को लेकर हो, या पाकिस्तान के लोगों को
यहाँ पे जो आने को लेकर वीज़ा को हो, वो तमाम प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान का रुख क्या रहने वाला है, वो तमाम चीज़ें जो है वो चर्चा का विषय हैं। उन चीज़ों पर चर्चा हुई है, मगर इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है कि अगर भारतीय सेना जो है वो हमला करे तो वो किस तरह से आगे तैयार होंगे। जो जानकारी है, पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसको अलर्ट पे रखा गया है। सरहद पर जवानों की तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है, ताकि अगर भारत कहीं हमला करे तो उसे वो रोकने में कामयाब हो जाए। मगर जब भारत हमला करेगा, समय कब होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें भारत तय करेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत अपने तरीके से पाकिस्तान को एक सबक सिखाएगा। जी, धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम माहिती हमारे साथ साझा करने के लिए। જે હવે આપણે વાત કરીએ તો આ પરિસ્થિતિમાં હિન્દુ સંગઠનો અને લોકોનું વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે અને આ એક સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે હમણાં હાલમાં આ ભારત દ્વારા આપણે જે હિન્દુસ્તાન કહીએ તો હિન્દુસ્તાન અને આના અહીંયાના સરકાર દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આપણે વાત કરીએ તો પાકિસ્તાન અત્યારે હાલમાં કોઈ ડરેલા માહોલમાં છે અને જે પ્રમાણે એ જે દુર્ઘટના થઈ છે અને જે આખી સમગ્ર ઘટનાને લઈને હમણાં હાલમાં સરકારે એક કડક રૂખ કર્યો છે। હવે હાલમાં આ વિશે વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર राकेश सर। सर खूब खूब स्वागत है आपका हमारे साथ। सर अभी ये जो पूरा हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जिस प्रकार से पूरी घटना हुई है और घटना में जो निर्दोष लोग मरे और उसके बाद से कल CSS की एक बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक के बाद में जो कुछ ये 5 जो निर्णय लिए गए हैं, तो सर क्या है ये पूरा सर? जी देखिए किशन, कल जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और आपने देखा था कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सऊदी अरब अपनी विजिट को कट शॉर्ट कर बीच में लौटे थे और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक की थी जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CSS की बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कार्रवाई की गई, जहां पाकिस्तान जो है सिंधु समझौता को जो है रोक लगाई गई है। पाकिस्तान जो है पानी के लिए तिल तिल कर मरेगा। वहीं जिस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ जो भारत में पाकिस्तानी जो कि सार्क के वीजा के द्वारा सुविधा लेकर अगर यहाँ पर है तो उनको एक समय सीमा के अंतर्गत उनको देश छोड़ने का साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से जो एम्बेसी है वहां पर भी कर्मचारियों को कम करने का जो 55 था उसको 32 करने का, तो ये तमाम चीजें फैसले लिए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो कि बैठक शुरू हो गई है और इसमें विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं जी, और आधिकारिक तौर पर जो है ये जानकारी शेयर की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कि आखिरकार क्या घटना घटी और सरकार ने क्या कदम उठाया। तो ये महत्वपूर्ण कदम है और सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाकर कई कदम उठाने की घोषणा की है। पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों के हमले में कम से कम जो है जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, इनमें से अधिकतर पर्यटक थे और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालने वाले किसी भी घटना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है। जैसा कि आपने 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद या 2020 में भारत में गतिरोध के दौरान देखा गया था और इससे संकट के समय राष्ट्रीय एकता की जो है तस्वीर पेश हुई थी और विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार को पूरी तौर पर समर्थन दिया गया था और सरकार ने अपनी स्थिति जो है सभी पक्षी दलों को स्पष्ट की थी। अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है पूरी जानकारी सर्वदलीय बैठक में साझा करेंगे। साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो पाकिस्तान को लेकर ये साफ है कि भारत की सोच साफ है और पाकिस्तान को जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं तो इसका जो है सीधा
उसका संदेश होता है। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर संदेश दे दिया है। अब जी समय और आखिरकार कहाँ स्ट्राइक होगा ये तय करना जो है भारतीय सेना को है, और सभी चीजें जो जल्दी में होगी। लेकिन इतना तय है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके जो आका है, उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, यानी उनको जो है भारत मिट्टी में मिला देगा। जी जी जिस प्रकार से हमने सबने देखा कि ये जो पूरी घटना हुई है और जिस प्रकार से अभी आप हमें बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक होगी, अभी इस वक्त ये पूरे जो घटनाक्रम है इसको लेके देश में, और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में और हर धर्म के लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेके एकदम मतलब गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। और सभी की एक ही मांग है कि इसका कुछ बदला लिया जाए या कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्योंकि जो 27 जो लोग बताए जा रहे हैं कि निर्दोष लोग जो वहां पे मारे गए, जो पर्यटक थे, तो इसके बदले में कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोबारा कभी ऐसी कोई हिम्मत ना करे। देखिए किशन, साफ तौर पे पूरे देश भर में गुस्सा है इसको लेकर, जी। जिससे घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और इसी को लेकर आप देख रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बिहार के दौरे पर थे और उन्हें सभा को संबोधित किया था, तो साफ तौर पे उनकी आक्रोश देखा जा सकता है चेहरे पर। और प्रधानमंत्री जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसके मायने समझिए, तो ये मायने समझना होगा। मोदी का ऐलान है और मिट्टी में मिलेगा आतंकिस्तान, ये साफ तौर पर कह सकते हैं। और हुक्का पानी बंद, अब एक्शन का इंतजार है। और ये मोदी का वार नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों को भागने के लिए जमीन कम पड़ेगी, पाकिस्तान को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और एक्शन में हिंदुस्तान है और खौफ में पाकिस्तान है। आप वहां पर देखिए कि वहां भी बैठकों का दौर चल रहा है। वहां पर सेना और जो हुक्मरान है वो चिंतित हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको देखना होगा कि इसका दूरगामी असर पड़ने वाला है और पाकिस्तान को इसका परिणाम जो है इसका झेलना पड़ेगा। जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो खबरें सामने निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान में भी फिलहाल डर का पूरा माहौल बना हुआ है, और जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन वो लोग पूरी रात डरे हुए थे और उन्होंने पूरे फाइटर जेट को भी रेडी करके रखा हुआ है और तैयार बताया जा रहा है। और ये जो सूत्रों के हवाले से जो भी ये सारी खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज का डर है और पाकिस्तान को भी पता है कि हमारे यहाँ से जो ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये है, इसी की वजह से पूरा डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, जहां तक इस जो घटना है, जिस तरह से अंजाम दिया गया आतंकियों द्वारा, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर है। और ये समझिए, थोड़ा मैं जिक्र कर दूं, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है। जेपी नड्डा है, सीतारमन भी बैठक में मौजूद है, राम गोपाल यादव, संजय सिंह, किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस बैठक में शामिल है। टीएमसी, बीजू जनता दल, डीएमके के नेता भी बैठक में शामिल हैं। किशन, और पहलगाम हमले पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जी, विदेश मंत्री जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं। तो गृह सचिव, आईबी चीफ बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है और पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और सरकार की जो सर्वदलीय बैठक है लगातार चल रही है। वो खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में पहुंचे हैं कांग्रेस की ओर से। तो कहना यह है कि जिस तरह से जो स्थिति है पूरे देश में, जो गुस्सा है, उसके साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी जी, जैसे सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में भी अभी फिलहाल डर का माहौल अभी छाया हुआ है और पाकिस्तान की सेना ने भी ये जो सारी तैयारी कर रखी है, और मतलब बताया जा रहा था कि उन लोगों ने फाइटर जेट भी अपना तैयार करके रखा हुआ है और वो लोग काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको भी पता है ये जो सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि भारत द्वारा कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा अभी जो आने वाले समय में? कह रहे हैं कि भारत की सैन्य शक्ति का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं। भारत जो है, अगर आर्म्ड व्हीकल की बात करते हैं, 1,48,594 है, जबकि 17,516 पाकिस्तान के पास है। ये सैन्य शक्ति का मैं ब्यौरा दे रहा हूं आपको जी, कि जिस तरह से भारत
के पास आर्टिलरी है 3,975 है, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629 जो है आर्टिलरी है। तो आप समझिए कि भारत की सैन्य शक्ति वार्षिक की बात करते हैं तो 293 भारत के पास और 121 पाकिस्तान के पास वार्षिक है। जी। तो भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है इससे समझा जा सकता है। ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी बैठक की, सबमरीन में 18 भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास जो है मात्र 8 सबमरीन है। तो आप भारत की सैन्य शक्ति आप समझिए, डिस्ट्रॉयर जो भारत के पास 13 है और पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो ये फाइटर जेट जहां है भारत के पास जो है 513 है, वहीं 200 के आसपास जो है पाकिस्तान के पास है। तो सैन्य शक्ति भी देखिए भारत का कितना जो है बड़ा है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की गिदड़ भभकी है और पाकिस्तान का जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के पास जो 513 है जिसका मैंने जिक्र किया, और पाकिस्तान के पास 328। जी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर जो है भारत के पास 899 करीब 900 और पाकिस्तान के पास जो है 373 है। साथ ही साथ जिस तरह से सैन्य शक्ति है भारत का, उसके सामने पाकिस्तान टिकता नहीं है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो आप समझिए कि भारत का दम पाक जो है वो बेदम हो जाएगा। और जहां अगर शक्ति की बात, मिसाइल की बात करते हैं तो हवा से हवा लॉन्च होने वाली हमारे पास क्रूज मिसाइल है 1947 और 1948, 1965 कश्मीर को लेकर जंग हुआ है। तो ये स्थिति है। 1971 में बांग्लादेश पर युद्ध हुआ था। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें भारत और भारत में इस लोगों में गुस्सा है। और समझिए कि मोदी सरकार है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को इसका जो किया है, जो दुस्साहस किया है पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना ने अपने जो जो पाल पोसे हुए आतंकियों द्वारा जो पहलगाम में अटैक किया गया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। तो ये रही महत्वपूर्ण बात। किशन जी जी, जैसे आज एक दोपहर में एक पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया था कि अगर इस प्रकार से अगर पानी रोकने का या पानी मोड़ने का अगर प्रयास किया गया तो हम उसे युद्ध के समय समझेंगे। तो जी जी धन्यवाद जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। હવે જોવાનું એ રહ્યું છે કે સરકારના આ કડક વલણ પછી પાકિસ્તાન પર શું અસર પડે છે અને આજે સર્વદળની બેઠક પછી શું પગલાં લેવામાં આવશે। આપણે હવે બધાએ જોશું કે પછી આગળ સરકાર દ્વારા ભાઈ કયા પ્રકારની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને જ્યારે આખા દેશમાં અને આખા બધા વિશ્વના લોકો એકસાથે મળીને કહે છે કે આતંકવાદનો ખાત્મો જરૂરી છે। હમણાં હાલમાં દેશના દરેક રાજ્યમાં એના આતંકવાદ ખિલાફ જે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે તેના દ્વારા અને તેને લઈને સરકારની જે સર્વદલીય બેઠક છે તે બેઠક પછી શું નિર્ણય લેવામાં આવશે તે હવે જોઈશું। આપણે વધુ વિગતવાર વાત મળીશું ફરી બીજી વાર, ત્યાર સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।